चंदन सा आदर, पुष्पों सा प्रेम, शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम ईश्वर को नमन और आप सबों को सुप्रभात के साथ अभिनंदन। सरलता सजनता के प्रतिमूर्ति जिन्होंने हमें विद्यालय में हिंदी वाक प्रतियोगिता आयोजन करने का अवसर प्रदान किए, सम्माननीय प्रधानाचार्य फादर रोशनर खालखो एसजे, आपको हमारी ओर से सहृदय अभिनंदन। जो हमारे दिल पर राज करे, बच्चों को प्यार करे, उस प्रधानाचार्य सिस्टर नित्या को सादर अभिनंदन। दीवारों की तरह चारों ओर से घेरे रहने वाले आप आदरणीय स्वरूप अभिभावकों को हृदय की गहराई से विद्यालय परिवार की ओर से प्यार भरा वंदन अभिवादन स्वीकार हो। ताला लगी है होठों पे, जकड़ा जज्बात जंजीरों में, ताला लगी है होठों पे, जकड़ा जज्बात जंजीरों में, कैद भावना पंख फड़फड़ाए, चाहता है हो आज़ाद। ऐसी चाहत लिए हुए हिंदी वाक प्रतियोगिता के हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे छात्र प्रतिभागियों, आप सबों को हमारा प्यार, आशीर्वाद, शुभकामना के साथ स्वागतम। किसको क्या मिला, इसका हिसाब रखने वाले हमारे आदरणीय निर्णायक मंडलीगण, जो इस हिंदी वाक प्रतियोगिता के मुख्य अंग हैं, आप सबों को सहर्ष नमन के साथ अभिवादन स्वीकार हो। अंत में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रतियोगिता में शामिल सभी मेरे प्यारे शिक्षक वृंद, आप सबों को प्यार भरा अभिवादन हमारा स्वीकार हो। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम उस सर्वव्यापी परमेश्वर को स्मरण करें जिन्होंने हमें यह जीवन दिया। वही हमारा एकमात्र दुख और सुख का साथी है। उसके सानिध्य को प्राप्त करने के लिए मैं गायक मंडली को मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
साथ प्रभु। इस सुंदर प्रार्थना गीत के लिए मैं गायक मंडली को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आस और उम्मीद की किरणों के प्रेरक शब्दों के साथ उपस्थित हो रहे हैं मजबूत पिलर स्वरूप हमारे विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य फादर रोशनर खालको एसजे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। Dear teachers, middle school students, respective parents, and all the viewers, good morning, everybody. My dear students, let this my message reach to each one of you and be with you. Surely, student life is beautiful, yet students go through all kinds of struggles during student life. Now it is a pandemic time, and student life has become all the more hectic and challenging. Such a wonderful student life is locked inside the cage, inside the four boundary walls. And if it continues, student life will become boring, sad, tiring, lifeless, hopeless, goalless, and frustrated. By any means, you must not allow your student life to be like this. You students, you children are a bright future of the society and the nation. You must find light and hope in life. You must find positive and inspiring motivations to become good students and humans. As a student, the most important thing to remember is that laziness is your worst enemy and hard work is your best friend. Remember that every problem is a challenge to prove yourself and a skill to be developed. No one is going to help you unless you help yourself. Trust in your own instincts and life will come more in your control. Today, middle school is having Hindi elocution. Some may comment negatively about elocution, saying, what's the use of it? We need to know, we must know, elocution, it may be in Hindi or English, provides a platform to showcase one's talent in an integrated display of articulation, dramatization, and voice modulation. Elocution often imparts a lot of confidence to the speakers. It plays a vital role in personality development of students. Along with effective communication skills, the students learn to make a definite or systematic statement. Thanks to the Hindi department that has organized the annual Hindi elocution competition and all the other middle school teachers who are contributing their responsibilities to make the day successful. I am proud of having such daring and diligent students like you who have taken this challenge during this corona time and have prepared yourself for the Hindi elocution competition. Let your talents shine bright and blind everyone. Hold positivity in heart and do well. Best of luck and keep working hard.
My sincere thanks to you parents who know the present situation and difficulties. Yet you have supported us by allowing your children to come and participate physically in this Hindi elocution. Dear final round contestants, I believe that you will do very well. All the best once again to everyone. May the Almighty God bless us now and today. Thank you. फादर के उत्साहवर्धक और प्रेरक शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं प्राज्ञा सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, वे आएँ और हमारे निर्णायक मंडली से परिचय करवाएं। सो प्राज्ञा सर। धन्यवाद ज्योति मैम। होठ खामोश थे, सिसकियां कह गई, द्वार बंद थे, खिड़कियां कह गईं, कुछ हमने कहा, कुछ अन्य भाषाएं कह गईं, जो न कह पाए वह हिंदी कह गई। आज मैं मंच पर उपस्थित हुआ हूँ हिंदी वाक प्रतियोगिता के निर्णायक मंडली से अवगत कराने के लिए। निर्णायक मंडली के रूप में हमारे समक्ष हैं आदरणीय निर्मला मैम, आदरणीय सिया मैम और आदरणीय रश्मि मैम। आप तीनों से मैं निवेदन करता हूँ, कृपया मंच पर पधारें। निर्मला मैम शिक्षा के क्षेत्र में लगातार 34 वर्षों से कार्यरत हैं। इतने लंबे वक्त का तजुर्बा, हिंदी साहित्य के प्रति उनकी लगन, हिंदी के क्षेत्र में अनेक प्रकार का योगदान, बच्चों के बीच प्रख्यात हिंदी शिक्षिका के रूप में निर्मला मैम का नाम लिया जाता है। सिया मैम अनवरत 27 वर्षों से इस विद्यालय में हिंदी विभाग का संचालन कर रही हैं। समय समय पर इनके लेखन कला का परिचय भी प्राप्त होता है। ये हमारे विद्यालय में एक उत्कृष्ट शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं। रश्मि मैम 14 वर्षों से शिक्षाविद के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी विषय के प्रति उनकी पकड़, जिज्ञासा, आध्यात्मिक चिंतन, सूक्ष्म चिंतन अनुकरणीय है। इन तीनों शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में हजारों बच्चे हिंदी भाषा का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और अनवरत रूप से करेंगे। इनके सानिध्य में हिंदी भाषा अर्जित करना सौभाग्य की बात है। इसलिए मैं आप तीनों से नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की शक्ति है। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी को प्रतियोगिता के नियमों से अवगत कराना चाहूँगी। प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण कक्षा 4 और 5 के छात्र होंगे। दूसरे चरण में कक्षा 6 और 7 के छात्र होंगे। प्रतिभागियों के वाचन का समय 3.5 मिनट का है। 3 मिनट में चेतावनी की घंटी दी जाएगी और दूसरी घंटी समय समाप्ति पर। समय समाप्ति के बाद यदि प्रतिभागी अपने वाचन को
लगातार बोलते रहते हैं तो मान्य नहीं रहेंगे। प्रतियोगिता चाहे जैसी भी हो, विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता का होना आवश्यक है। प्रतियोगिता के मंच पर ही उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आती है। जिस प्रकार जीवन के दो पहलू हैं, सुख और दुख, उसी प्रकार प्रतियोगिता के भी दो पहलू हैं, हार और जीत। हार से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा ही आशा की पहली किरण है, पहली सीढ़ी है। इसलिए हौसलों को तरकश में कोशिश की वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश की वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे मगर फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश जिंदा रख। इसी भावना के साथ हिंदी कविता मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं शिक्षिका विनीता को आमंत्रित करती हूँ मंच पर आए और हिंदी प्रतियोगिता को आगे बढ़ाएं। विनीता मैम। धन्यवाद ज्योति मैम। यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए हिंदी कविता प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। मनुष्य को दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए। इस विषय को लेकर कविता जिद हो के माध्यम से करिश्मा मेहता आ रही हैं। करिश्मा मेहता। सुप्रभात। जिद करो कि दुनिया बदल जाए, जिद करो कि दुनिया बदल जाए। जिद हो ऐसी जो गलत को सही कर जाए। सहरा में नदियां बहने लगे, सहरा में नदियां बहने लगे, बंजर धरा भी हरी हो जाए। जिद हो हर भूखे को रोटी मिले, जिद हो हर भूखे को रोटी मिले। जिद हो ऐसी जो रोते को हंसा जाए। हौसला दो किसी की टूटती उम्मीदों को, हौसला दो किसी की टूटती उम्मीदों को, हाथ दो किसी के थकते कदमों को। जिद हो जो आंधी में दिया जला दे, जिद हो जो आंधी में दिया जला दे। जिद हो ऐसी जो रास्ते के लिए चट्टान हिला दे। हर बात सिर झुकाकर मान लेना बुज़दिली है, हर बात सिर झुकाकर मान लेना बुज़दिली है। कई बार जिद करना भी जरूरी है। जिद हो कि सत्य ना छिपे कभी, जिद हो कि सत्य ना छिपे कभी। जिद हो सत्याग्रह ना रुके कभी। जिद हो हर हार जीत में बदल जाए। जिद करो कठिन सरल हो जाए। जिद करो अनेक एक हो जाए। जिद करो अनेक एक हो जाए। जिद करो बदी नेक हो जाए। जिद हो जो बाली को वाल्मीकि कर दे, जिद हो जो बाली को वाल्मीकि कर दे। जिद हो जो अंधेरों में रोशनी भर दे। जिद करो कि दुश्मनों के सामने सिर झुके नहीं। जिद करो कि दुश्मनों के सामने सिर झुके नहीं। जिद हो ऐसी जो मातृभूमि के लिए सिर कटा जाए। जिद करो जो तारे धरती पर उतरने लगे। जिद करो जो तारे धरती पर उतरने लगे। ख्वाब किसी और के पूरे करो, ख्वाब किसी और के पूरे करो कि कोई तुमसे भी प्यार करने लगे। धन्यवाद। धन्यवाद करिश्मा। हमारा जीवन ही एक किताब की तरह है जिसके प्रत्येक पन्ने में जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। इस बिंदु को लेकर आ रहे हैं वरदान देव, जिनकी कविता का शीर्षक है माँ मुझे किताबें मंगवा दो।
वरदान दो। नमस्कार। माँ मुझको किताबें मंगवा दो, मैं भी पढ़ने जाऊंगा। सीख सीख कर सारी बातें तुमको भी बतलाऊंगा। माँ मुझको किताबें मंगवा दो, मैं भी पढ़ने जाऊंगा। 5 जन्मदिन बीत गए हैं, अब तो स्कूल जाना है। पढ़ लिख कर बनूंगा अफसर, ऐसा मैंने ठाना है। बैठ के ऊंची कुर्सी पर मैं भी हुक्म चलाऊंगा। माँ मुझको किताबें मंगवा दो, मैं भी पढ़ने जाऊंगा। गणवेश का कपड़ा लाना, अच्छे दर्जी से सिलवाना। जूते मोजे और स्वेटर अपने हाथों से पहनाना। पहनकर कोट सबसे ऊपर मैं भी टाई लगाऊंगा। माँ मुझको किताबें मंगवा दो, मैं भी पढ़ने जाऊंगा। बस्ता लाओ अच्छा सुंदर, छपा हो जिस पे भालू बंदर। रबड़ पेंसिल और किताबें माँ रखना उसके अंदर। जेब में रखकर 10 का नोट मैं भी चीजें खाऊंगा। माँ मुझको किताबें मंगवा दो, मैं भी पढ़ने जाऊंगा। पढ़ लिख कर हम बने महान, पूरा हो सर्व शिक्षा अभियान। माता पिता और गुरुजन का बढ़ जाए देश का मान। पढ़े भारत बढ़े भारत, मैं ये बीड़ा उठाऊंगा। माँ मुझको किताबें मंगवा दो, मैं भी पढ़ने जाऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद वरदान। देश के वीर जवानों को देश की रक्षा के लिए आह्वान किया जाता है। कविता एक संदेश वीरों के लिए को लेकर आ रही हैं कुमारी दिव्य दर्शनी। कुमारी दिव्य दर्शनी। सुप्रभात। एक संदेश वीरों के नाम। वक्त आ गया है जागो, जागो देश के वीर जवान। हंसते हंसते कर दिए जिसने अपने प्राण बलिदान। वीर शिव भगत सिंह बनकर उभरो, ऐसी है भारत की मांग। वक्त आ गया है जागो, जागो देश के वीर जवान। शत्रुओं की दांत खट्टे कर जिसने किया प्रथम संग्राम। झांसी की रानी कहलाई, हो गई देश पर कुर्बान। वक्त आ गया है जागो देश के वीर जवान। जिसने कभी ना हारना सीखा, किया जीत पर विजय प्राप्त। वीर शिवाजी बनकर जागो, करो देश का तब कल्याण, करो देश का तब कल्याण। वक्त आ गया है जागो देश के वीर जवान। आर्य जहां के संस्कृति दाता, ऋषि मुनियों का जहां आश्रम। सत्य अहिंसा का जहां पग पग लगता है धाम, पग पग लगता है धाम। वक्त आ गया है जागो देश के वीर जवान। बिहार के कुंवर से जागो, मैसूर के टीपू सुल्तान। बिहार के कुंवर से जागो, मैसूर के टीपू सुल्तान। भारत की पवित्र भूमि पर करो रक्त का दान, करो रक्त का दान। वक्त आ गया है जागो देश के वीर जवान। झारखंड की विभूति जागो, राज्य मांग रहा अपनी शान। सिद्धू कान्हू के सपनों को करना है तुम्हें साकार, करना है तुम्हें साकार। दुश्मनों ने जब भी किया चारों ओर से संघार, वीरों ने भगत सिंह बनकर मुंह तोड़ दिया जवाब, मुंह तोड़ दिया जवाब। वक्त आ गया है जागो देश के वीर जवान। दुश्मनों से रक्षा को रहते वीर सदैव तैयार। एक बार करता है फिर यह वतन उनको सलाम, यह वतन उनको सलाम। वक्त आ गया है जागो, जागो देश के वीर जवान। वक्त आ गया है जागो, जागो देश के वीर जवान। धन्यवाद। धन्यवाद दिव्या दर्शनी। कर्म ही हमारी पूजा है, काम से ही हमारी पहचान है। अतः हमारी अगली प्रतिभागी हैं ईशानवी जैन। ईशानवी जैन, जिनकी कविता का शीर्षक है काम हमारे बड़े बड़े। सुप्रभात।
हम बच्चे हैं छोटे छोटे, काम हमारे बड़े बड़े, काम हमारे बड़े बड़े। आसमान का चांद हमने ही तो थाली बीच उतारा है, थाली बीच उतारा है। आसमान का सतरंगा वह बांका धनुष हमारा है, बांका धनुष हमारा है। आसमान के तारों में वे, आसमान के तारों में वे तीर हमारे गड़े गड़े, तीर हमारे गड़े गड़े। हम बच्चे हैं छोटे छोटे, काम हमारे बड़े बड़े, काम हमारे बड़े बड़े। बापू ने जब भी गुल बजाया, देश जागा हम भी जागे, देश जागा हम भी जागे। आजादी के महायुद्ध में हम सब थे आगे आगे, हम सब थे आगे आगे। इस झंडे के ही खातिर, इस झंडे के ही खातिर हमने कष्ट सहा था खड़े खड़े, हमने कष्ट सहा था कड़े कड़े। हम बच्चे हैं छोटे छोटे, काम हमारे बड़े बड़े, काम हमारे बड़े बड़े। भरत के रूप में हमने ही तो दांत गिने थे उन शेरों के, दांत गिने थे उन शेरों के। और राम बनकर हमने ही तो दांत किए थे उन खट्टे असुर लुटेरों के, खट्टे असुर लुटेरों के। श्री कृष्ण कन्हैया बनकर, श्री कृष्ण कन्हैया बनकर हमने ही तो नाग नथा था खड़े खड़े, नाग नथा था खड़े खड़े। हम बच्चे हैं छोटे छोटे, काम हमारे बड़े बड़े, काम हमारे बड़े बड़े। हर गणतंत्र दिवस की परेड, हर गणतंत्र दिवस की परेड सजती है हम बच्चों से, सजती है हम बच्चों से। वीर बालकों की झांकियों पर खूब तालियां बजती है, पाते जनगण मन आशीष। हाथी पर हम चढ़े चढ़े, हाथी पर हम चढ़े चढ़े। हम बच्चे हैं छोटे छोटे, काम हमारे बड़े बड़े, काम हमारे बड़े बड़े। धन्यवाद। धन्यवाद ईशानवी। यदि परिवार में एक नारी शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। इसे अन्वी गोयल लेकर आ रही हैं, अन्वी गोयल लेकर आ रही हैं, जिनकी कविता का शीर्षक है मैं स्त्री हूँ। सुप्रभात। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद में ही गर्जन हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सत्युग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है जब कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरी घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया। एक ने मुंह पर हाथ रखा तो एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बानों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ होकर काया। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे न आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो। यह चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं,
थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़के बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पे ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली थी अकेली रात में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को। कैसे भूलूं उन सीखों को। मेरी शरीर की चोट तो बस कुछ दिन में ही भर जाएगी, पर मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो यह आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और यह आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। धन्यवाद। धन्यवाद अनवी। बेटी की करुण पुकार, जो अपनी माँ की कोख से बाहर आकर दुनिया देखना चाहती हैं, इसे बतलाने हमारी अगली प्रतिभागी हैं आरुषि वंसल, जिनकी कविता का शीर्षक है बेटियां बोझ नहीं होती। सुप्रभात। मैं बोझ नहीं हूँ माँ, मुझको यूं कोख में ना मारो तुम ही तो मेरी ताकत हो, ऐसे हिम्मत ना हारो तुम। आने दो मुझे इस दुनिया में, मैं तुम्हारा नाम रोशन कर दूंगी। तेरी हर तकलीफ को दूर कर तेरा घर खुशियों से भर दूंगी। मैं भी तो तेरा खून ही हूँ ना माँ, इस बात को विचारो तुम। मैं बोझ नहीं हूँ माँ, मुझको यूं कोख में ना मारो तुम। मुझ पर भले विश्वास ना हो, मुझ पर भले विश्वास ना हो, पर खुद पर तो विश्वास रखो। मुझे बचाने के खातिर तुम थोड़ा तो प्रयास करो। रूखी सूखी खाकर मैं संग तेरे रह जाऊंगी। बेटी होने के सारे फर्ज मैं पूरे गर्व से निभाऊंगी। इन लोगों के स्वार्थ के खातिर मेरी दुनिया ना उजाड़ो तुम। मैं बोझ नहीं हूँ माँ, मुझको यूं कोख में ना मारो तुम। यही है देवी माता भी यही है, जिसने बांधा है सबको प्यार से। असल में वो नाता भी यही है, बिन नारी ना सृष्टि चलेगी, इस बात का तुम सब ज्ञान करो। बेटी को बोझ समझकर बेटी का ना अपमान करो। बेटी ना होगी तो ये बेटे किस संग बिहाएंगे। बहन ना होगी तो ये भाई राखी किससे बंधवाएंगे। नवरात्रि के दिनों में इनको कन्याएं भी ना मिल पाएंगी। आने वाली दुनिया कैसे अपना अस्तित्व बचाएगी। बतलाओ ये बातें, सोच को इनकी सुधारो तुम। मैं बोझ नहीं हूँ माँ, मुझको यूं कोख में ना मारो तुम। है सबका वो जीवन सुधारती, इसका भी तो सम्मान करो। वक्त जो आया आज है मुझ पर, उसको आज संभालो तुम। मैं बोझ नहीं हूँ माँ, मुझको यूं कोख में ना मारो। मैं बोझ नहीं हूँ माँ, मुझको यूं कोख में ना मारो, यूं कोख में ना मारो। धन्यवाद। धन्यवाद आरुषि। जिस तरह नदी लगातार आगे बढ़ती जाती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी चलता रहता है। लेकर उपस्थित हो रहे हैं नमन पंडित, जिनकी कविता का शीर्षक है चलना हमारा काम है। सुप्रभात। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं डर डर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक मंजिल ना पा सकूं, तब तक मुझे ना विराम है। चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह मैं परिचय कहूँ, राह ही हमारा नाम है। चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गतिमती न
हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में डर डर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम, उसकी सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। धन्यवाद। धन्यवाद। नमन। कबीरदास कहते हैं, यदि मैं सारी धरती को कागज बना दूं, सभी जंगलों के पेड़ पौधों को कलम बना दूं और सातों समुद्र को स्याही बना दूं, तब भी गुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। अतः अंतिम प्रतिभागी श्रेया मेहता जिनकी कविता का शीर्षक है ये टीचर बड़े महान हैं। सुप्रभात। ये टीचर बड़े महान हैं, कभी डांटते कभी प्यार से, कभी डांटते कभी प्यार से, हमें सिखाते हमें पढ़ाते, हमको देते हर ज्ञान है। ये टीचर बड़े महान हैं, ये टीचर बड़े महान हैं। अपने अलग अनुभव से हमको शिक्षा देते हैं, सफल जीवन जीने का ये एक अनोखा वरदान है। ये टीचर बड़े महान हैं, ये टीचर बड़े महान हैं। सफल बनाना हमको, हमारे अच्छे अंकों के लिए ये खींचते हमारी कान है। ये टीचर बड़े महान हैं, ये टीचर बड़े महान हैं। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, हर छात्र को समझते एक समान है। ये टीचर बड़े महान हैं, ये टीचर बड़े महान हैं। महत्व बड़ा है जीवन में इनका, बिना इनके ना तो हमारा भविष्य है और ना ही वर्तमान। ये टीचर बड़े महान हैं, ये टीचर बड़े महान हैं। किरदार निभाकर इनका आज जाने हम, इनकी कितनी जिम्मेदारियों से अनजान हैं। ये टीचर बड़े महान हैं, ये टीचर बड़े महान हैं। अलग ही इनकी मान है, अलग ही इनकी मान है, अलग ही इनकी सम्मान है, अलग ही इनकी मान है, अलग ही इनकी सम्मान है, अलग ही इनकी पहचान है, अलग ही इनकी पहचान है। ये टीचर बड़े महान हैं, ये टीचर बड़े महान हैं। धन्यवाद। धन्यवाद श्रेया। हिंदी कविता प्रतियोगिता के दूसरे चरण के लिए अब मैं मंच संचालन के लिए बेबी मैम को आमंत्रित करती हूँ। बेबी मैम। धन्यवाद विनीता मैम। कविता जो जन्म लेती है अंतर्मन में, विचार रूपी बीज से कवि उसे धारण करता है,
भावनाओं के गर्भ में समय के साथ पोषित होती है और विकसित होते हैं उसके कोमल अंग। छंद, अलंकार, रस और श्रृंगार फिर किसी स्याह रात में जन्म लेती है नवजात कविता। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा वंदन, नमस्कार, अभिनंदन। और समय के महत्व को समझते हुए कक्षा 6ठी और 7वीं के विद्यार्थियों को अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। हमारी पहली प्रतिभागी हैं वेद ऋचा, जो पर्यावरण के महत्व को बताएंगी। यहाँ अपने इनकी कविता का शीर्षक है पेड़ की आत्मकथा। नमस्कार। देखकर यूं हालत आम की, मौन न रह पाया नीम। कहा क्यों तुम उदास, क्या बुलाऊं मैं कोई हकीम। कहा आम ने तब, देखो देखो मेरी हालत क्या है, कितनी शाखाएं मेरी कटी हैं, लगता है यूं मैं ठूठ हो जाऊंगा। इतनी लकड़ी मैं मानव को कहां से दे पाऊंगा, इतनी लकड़ी मैं मानव को कहां से दे पाऊंगा। कभी ईंधन के नाम पर तो कभी यज्ञ के नाम पर, कभी फर्नीचर के नाम पर तो कभी दाह के नाम पर। कटते आए हम सभी, कमजोर हो जाएंगे जब कभी तो खुद ही गिर जाएंगे। इतनी लकड़ी हम मानव को कहां से दे पाएंगे। अधिक काटते हैं वृक्षों को, अधिक काटते हैं वृक्षों को, कम लगाते हैं वे वृक्ष। आगे भविष्य में तो हम ऑक्सीजन भी ना दे पाएंगे। इतनी लकड़ी हम मानव को कहां से दे पाएंगे। दूषित हो गई हवा इतनी, दूषित हो गई हवा इतनी कि शुद्ध भी ना कर पाएंगे। संख्या भी हो गई इतनी कि हरियाली भी दिखा ना पाएंगे। सुनकर वृक्षों की ये बातें, सुनकर वृक्षों की ये बातें धरती भी बोल उठी। है इतना दर्द हृदय में, कैसे तुम्हें दिखाऊंगी। इतना अन्न मैं मानव को कहां से दे पाऊंगी। सुनकर यह सरिता बोली, देखो मुझको, देखो मुझको, मेरे जल को, कितनी गंदगी भरी पड़ी। ना ही पीता कोई इसको और ना ही कोई रखता इसको। इतना शुद्ध जल मैं मानव को कहां से दे पाऊंगी। देखो आज कितनी विकट परिस्थितियां आन पड़ी, देखो आज कितनी विकट परिस्थितियां आन पड़ी। जो मानव समय समय पर इतराता था, आज वह घर में चुप बैठा है। ना दफ्तर खुलते, ना स्कूल खुलते, ना बाजार, ना हाट खुलते और ना ही वे लोगों से मिलते। आज वे पर्यावरण बचाने के खातिर मारे मारे फिरते हैं। पान गुटखा खा जो इधर उधर थूकते थे, पान गुटखा खा जो इधर उधर थूकते थे, आज वे अचानक मुंह पे पर्दा लगाकर क्यों घूमते हैं। किया है ये सब कुछ मानव ने, वो तो ना बच पाएगा। पर्यावरण को दूषित कर, वो तो ना जी पाएगा। धन्यवाद। पर्यावरण बचाएं, जीवन बचाएं। धन्यवाद वेद ऋचा। दूसरी प्रतिभागी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रही हैं हर्षिका। उनकी कविता राष्ट्रकवि दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। रश्मि रथी से है, तृतीय सर्ग। नमस्कार। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम।
रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। ढकमग ढकमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश परे। केवल दो नर ना खाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोर खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। धन्यवाद हर्षिका। महानता कभी गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अब मंतशा हमारे सामने कुछ इसी प्रकार अपनी कविता को प्रस्तुत करेंगी। इनकी कविता का शीर्षक है अड़े रहो। मंतशा। नमस्कार। अड़े रहो। अगर सिर पे हो जुनून तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहाँ तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो। झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो। अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। ये दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला। ये दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला। अपमानों का हार मिला, तानों का उपहार मिला। अविश्वास में अब विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो। अविश्वास में अब विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो। हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो। अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं में सिद्ध इस जीवन के, उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। तुम स्वयं में सिद्ध इस जीवन के, उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो। विश्वास पे अपने खड़े रहो। अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। धन्यवाद। बहुत अच्छा। मंतशा, अब मंच पर अर्णव आ रहे हैं अपनी कविता को प्रस्तुत करने। इनकी कविता का शीर्षक है रातों का ढल जाना तय है। नमस्कार। किस जीत ने हारना नहीं देखा है, या किस हार को कभी जीत नहीं मिली। सबने सब देखा है। जो सूरज कल ढल गया था, आज हम सबने उगते देखा है। पाना खोना, हारना जीतना चलता रहेगा, चलता रहेगा। बस जीत की कोशिश कभी कम नहीं रहनी चाहिए। जीत आपकी होगी। माना कि दिन का ढलना तय है, रात का वक्त ठहरना तय है। पर मन में ये विश्वास जगाए रहना टिके मशाली लेकर। दिन का फिर से आना तय है, रातों का ढल जाना तय है।
रातों का ढल जाना तय है। नदियां चाहे दुनिया नापे, चाहे कितने नाव डुबा दे, लहरें कितनी भी ऊंची हो, लहरें कितनी भी ऊंची हो, सागर में बह जाना तय है। दिन का फिर से आना तय है, रातों का ढल जाना तय है, रातों का ढल जाना तय है। हार गए तो चिंता क्या है, तू इनको इतना गिनता क्या है। एक जीत के आगे, एक जीत के आगे इन सिक्कों का बसते रह जाना तय है। दिन का फिर से आना तय है, रातों का ढल जाना तय है, रातों का ढल जाना तय है। मन इतना भी डरा नहीं है, मन इतना भी डरा नहीं है कि वक्त के आगे खड़ा नहीं है। मुश्किल आंख दिखाती है पर, मुश्किल आंख दिखाती है पर, अंत उसी का आना तय है। दिन का फिर से आना तय है, रातों का ढल जाना तय है, रातों का ढल जाना तय है। हवा जुटाए लाख बवंडर, भले कपाए धरती अंबर, चाहे जितना भी दम भर ले, चाहे जितना भी दम भर ले, चल चल कर थक जाना तय है। दिन का फिर से आना तय है, रातों का ढल जाना तय है, रातों का ढल जाना तय है। माना माना कि दिन का ढलना तय है, रात का वक्त ठहरना तय है, पर मन में ये विश्वास जगाए, पर मन में ये विश्वास जगाए रहना टिके मशाले लेकर। दिन का फिर से आना तय है, रातों का ढल जाना तय है, रातों का ढल जाना तय है। धन्यवाद। धन्यवाद अर्णव। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। कुछ इस तरह की सोच को प्रस्तुत कर रहे हैं अरिजीत। इनकी कविता का शीर्षक है नर हो न निराश करो मन को। नमस्कार। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो तन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो, उठकर अमरत्व विधान करो। तब रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। मरणोन्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी परमान रहे। कुछ हो ना तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। करके विधि वादना खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो थिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो। धन्यवाद। अब मंच पर हमारी अगली प्रतिभागी हैं स्वस्तिका। वो अपनी तमाशा कविता के द्वारा कौन सा तमाशा दिखा रही हैं, हम लोग सुनते हैं। स्वस्तिका। नमस्कार। अब मैं आपको एक कविता नहीं सुनाती, एक तमाशा दिखाती हूँ। ये तमाशा कविता से बहुत दूर है। दिखाओ साहब, मंजूर है?
देखिए, मेरे हाथ में ये 3 टेस्ट ट्यूब है। गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, मन की आंखों, कल्पना की पाखों से देखिए। क्या कहा? उंगलियां हैं? अरे नहीं नहीं, टेस्ट ट्यूब है। तमाशा देखते वक्त दरिया दिल रहिए। अब बताइए इनमें क्या है? बताइए बताइए इनमें क्या है? अरे आपको क्या हो गया है? टेस्ट ट्यूब दिखती है, अंदर का माल नहीं दिखता। ठीक है, मैं बताती हूँ। इनमें खून है, पहले में हिंदू का, दूसरे में मुसलमान का और तीसरे में सिख का खून है। हिंदू मुसलमान में तो आजकल बड़ा ही जुनून है। अब फर्क बताइए, क्या इनमें फर्क है? हाँ तो दोस्तों, जरूर इनमें फर्क है, तभी तो इस समाज का बेड़ा गर्क है। रगों में शांत नहीं रहता, उबलता है, धड़कता है, फूट पड़ता है। फर्क नहीं होता तो दंगे फसाद नहीं होते, फर्क नहीं होता तो खून खराबों के बाद लोग नहीं रोते, अंतर नहीं होता तो गर्म हवाएं नहीं बहती, अचानक विधवाएं नहीं होती। देश में चारों तरफ हत्याओं का मानसून है, ओलों की जगह हड्डियां हैं, पानी की जगह खून है। किसी का खून सूखता है तो किसी का जलता है। अगर ये 3 टेस्ट ट्यूब मैं फ्रिज में रखूं तो खून जम जाएगा, सील डालकर बाहर निकालूं तो आइसक्रीम का मजा आएगा। आप खाएंगे आइसक्रीम? आप खाएंगे? मुझे मालूम है आप नहीं खाएंगे, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ हैवान हैं, कुछ दरिंदे हैं जिनकी बस खून की ही धंधे हैं। मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर बड़े मजे से खाते हैं आइसक्रीम और अपनी हवस के लिए आदमी से आदमी को लड़ाते हैं। इन्हें मासूम बच्चों पर तरस नहीं आता, मीठी लोरियों का सुर नहीं भाता, माँ के सिंदूर से इन्हें कोई मतलब नहीं, कलाई की चूड़ियों से इनका कोई नाता नहीं। खैर छोड़िए, आप फर्क बताइए, क्या पहला पीला, दूसरा नीला और तीसरा हरा है? जिससे भी पूछती हूँ वह कहता है कि अंदर लाल रंग बह रहा है, और यही इस तमाशे की टेक है। फर्क बस अलग अलग टेस्ट ट्यूब में है, अंतर खून में नहीं, मजहबी मसूबी में है। मजहब, जात, बिरादरी और खानदान भूलिए, खूनदान पहचाने कि किस खूनदान के हैं, इंसान के हैं कि हैवान के हैं। और इस तमाशे की अंतिम इच्छा यही है कि खून सड़क पर ना बहे, वह तो धमनियों में दौड़े और रगों में रहे। धन्यवाद। धन्यवाद स्वस्तिका। हमारी अगली प्रतिभागी मंच पर होंगी आकाशी। इनकी कविता का शीर्षक है वापस आना पड़ता है। आकाशी। नमस्कार। वापस आना पड़ता है, फिर से वापस आना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर से वापस आना पड़ता है। हाँ, हम सब ने ये ठीक सुना, वापस आना पड़ता है, फिर से वापस आना पड़ता है। जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती है, जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती है, जब राह की कीले पग छल्ली कर देते हैं, जब राह की कीले पग छल्ली कर देते हैं, ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है, ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर से वापस आना पड़ता है। भाग्य को भी अपनी मुट्ठी अधिकार से लाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर से वापस आना पड़ता है। कहाँ बंधी जंजीरों में हम लोगों की हस्ती, ध्वंस हुआ भंवरों में फंसी कश्ती। विपदा में मन के पल का हथियार चलाना पड़ता है, विपदा में मन के पल का हथियार चलाना पड़ता है। अपने हिस्से का सूरज भी खुद खींच कर लाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर से वापस आना पड़ता है। क्या पत्थर की बंदिश से बहती नदियां रुकती है?
क्या हालातों की धमकी से, क्या हालातों की धमकी से अपनी नजरें झुकती है। किस्मत के हर पन्ने पर, किस्मत के हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। जिसमें मशाल से जज्बा हो, जिसमें मशाल से जज्बा हो, वो दीप जलाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर से वापस आना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर से वापस आना पड़ता है। धन्यवाद। धन्यवाद आकाशी। कुछ मिल जाना किस्मत से होता है, पर कुछ हासिल तो कोशिश से होती है। रिद्धिमन कुछ इस प्रकार की सोच को अब मंच पर प्रस्तुत करेंगे। इनकी कविता का शीर्षक है प्रयत्न कर। रिद्धिमन। नमस्कार। यूं मुश्किलों से तू न डर, प्रयत्न कर, प्रयत्न कर। तू कदमों को न रुकने दे, स्वयं को तू न थकने दे। प्रयत्न करके हारा जो, तो शिकस्त भी एक शस्त्र है। एक पग भी न बढ़ाया जो, तो ये जिंदगी शिकस्त है। अड़चनों की धूप में तू कोशिशों की छांव बन। यूं मुश्किलों से तू न डर, प्रयत्न कर, प्रयत्न कर। आरंभ कर न बन सके, स्वयं का तू विहान बन। तू भाग्य को न दोष दे, स्वयं का तू विधान बन। यूं दूसरों की जीत से स्वयं को तू न कम समझ। स्वयं को तू ये सिद्ध कर, तू लक्ष्य से क्यों दूर है। यूं मुश्किलों से तू न डर, प्रयत्न कर, प्रयत्न कर। न रोशनी की राह तक स्वयं का तू मशाल बन। अब ध्येय के इस युद्ध में स्वयं की ही तू ढाल बन। तू सूर्यगण न पा सके, स्वयं का आसमां बन। यूं मुश्किलों से तू न डर, प्रयत्न कर, प्रयत्न कर। तू गलती कर पर ना घबरा, तू गिर कर फिर हो जा खड़ा। समस्याओं को रास्तों से निकाल दे, चट्टान भी हो तो ठोकर से उछाल दे। रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, जरूरत नहीं है किसी मुसीबत से घबराने की। तू धैर्य की उड़ान भर, तू सब्र रख, तू सब्र रख। यूं मुश्किलों से तू ना डर, प्रयत्न कर, प्रयत्न कर। कोशिशों की राह पे स्वयं को तू भटकने दे। तू मंजिलों को पाएगा, कदमों को न डगमगाने दे। तू हौसलों की सीप में बुलंदियों की मोती बन। यूं मुश्किलों से तू न डर, प्रयत्न कर, प्रयत्न कर, प्रयत्न कर। धन्यवाद। धन्यवाद रिद्धिमन। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूँ कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे, गर गर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। मैं चाहती हूँ हमारे जो विद्यार्थी यहाँ मंच पर अपनी कविताओं का मंचन किए, उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। निर्णायक मंडली द्वारा दिए गए निर्णय को आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले मैं आदरणीय निर्मला मैम को मंच पर आग्रह करती हूँ वो मंच पर आकर हम सभी के सामने कुछ आशीर्वचनों को देकर हम सभी को कृतार्थ करें।
प्लीज निर्मला मैम। धन्यवाद बेबी मैम, मुझे यहाँ पर मंच में बुलाने के लिए और अपना विचार व्यक्त करने के लिए। सुप्रभात। परम आदरणीय प्रधान आचार्य फादर रोशनर खालको SJ, उप प्रधानाचार्य सिस्टर नित्या, हमारे शिक्षकगण तथा उपस्थित श्रोतागण एवं मेरे प्रिय बच्चों, मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मुझे मंच पर आमंत्रित कर आपने अपना विचार प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया है। आज की प्रतियोगिता में शामिल सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। जीतने वाले बच्चे तो कुछ ही होंगे, लेकिन मेरे विचार अनुसार मंच पर आकर बोलना तथा अपनी कला का प्रदर्शन करना सबसे बड़ी बात होती है। सभी बच्चों ने कविता के रूप में जो कलाकारी दिखाई है वह तो काबिले तारीफ है। नेक टू नेक कंपटीशन। बच्चों में आत्मविश्वास की थोड़ी बहुत कमी ज़रूर नज़र आई, फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि अपने निरंतर प्रयास से बच्चे उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ हमेशा बना रहे तथा आप सभी निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो। अंत में मैं अपने अभिभावक गण को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भी अपना प्रयास जारी रखा। ऑनलाइन क्लासेस होने के बावजूद उन्होंने भी बहुत मेहनत की। अंत में सबों की मेरी ओर से आप सबको पुनः धन्यवाद। धन्यवाद निर्मला मैम, बहुत अच्छा लगा हम सभी को। और
अब मैं आग्रह करूंगी कि हमारी सिस्टर नित्या आप सबों के सम्मुख निर्णायक मंडली द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसको प्रस्तुत करें। सिस्टर। Good morning, everyone. This is the final phase of the competition. Oh, yeah. Announcement of result is the most awaited and most excited moments of any competition. Dear students, on this auspicious occasion, let me remind you one thing. There is no lift or elevation to success. We have to climb steps one by one. Give your best, and the best will come back to you. So, I now welcome our respected principal, Father Rosnell Kalko, to come over the stage and give out prizes. Let's welcome him with loud applause. Thank you, Father. According to the names announced here, students are requested to come forward and get your prizes from the principal. Result of Group 1. They are students from class 4 and 5. First prize goes to Anvi Goyal 4A. Anvi Goyal 4A. Second prize goes to Kumari Divyadarshini 5D. Kumari Divyadarshini 5D. Third prize is shared by two students, Arushi Bensal 5B, Arushi Bensal 5B, Shreya Mehta 5C, Shreya Mehta 5C. Let us give a loud applause to all the winners of Group 1. We also have few participation certificates. Karishma Mehta 5D, Karishma Mehta 5D. Vardhan Dev 4C, Ishanvi Jain 4D, Naman Pandit 4A. We appreciate your participation. Congratulations, students. Yes, now we have the result of Group 2. Group 2, students please listen. Arijit Malik 7D. First prize goes to Arijit Malik 7D. Second prize goes to Agachi Kongadi. Agachi N. Kongadi. Third prize goes to Ridhiman Jain. Ridhiman Jain. Few students will also get participation certificates. Vedricha Pandit 6B, Harshida Sharma 7A, Mandasha Anwar 7B, Arnav Kumar Sinha 7C, Swastiga Soni 6A. Let us clap our hands and congratulate all the winners of Group B.
Thank you, Father. Thanks to one and all. सम्मानित प्राचार्य फादर रोशनल खाल को इस प्रतियोगिता के आमंत्रित निर्णायक मंडली, प्रिय शिक्षकों, अभिभावकों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को सुप्रभात। सबसे पहले पूरे विद्यालय की ओर से मैं आदरणीय प्राचार्य फादर रोशनल खालको को धन्यवाद देना चाहूँगी। आपकी उपस्थिति और प्रेरणादायक शब्दों के बिना स्कूल का कोई भी कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो सकता है। आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फादर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की ओर से हमारी हिंदी कविता प्रतियोगिता के विशिष्ट निर्णायक मंडली निर्मला कुजूर, रिया मिश्रा और रश्मि शर्मा को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद यहाँ रहने का समय निकाला। आपके बहुमूल्य समय और समर्पण ने हमारे विद्यार्थियों को उनके रचनात्मक प्रयासों के लिए पुरस्कृत करना संभव बना दिया है। आपके सहयोग के लिए मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। पूरे विद्यालय की ओर से यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों को आपके निरंतर सहयोग के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आपका दृढ़ संकल्प और समर्पण अत्यंत प्रशंसनीय है। तालाबंदी के दौरान इस आयोजन को संभव बनाने में हमारी मदद करने के लिए आप सभी हमारे विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जो इस आयोजन की रीढ़ रहे हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद अंतिम दौर की प्रतियोगिता में सबसे योग्य छात्रों का चयन अत्यंत सावधानी से करने के लिए आपने समय निकाला। प्रिय शिक्षकों, इस प्रतियोगिता को बहुत व्यवस्थित और सर्वोत्तम तरीके से आयोजित करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं अपने विद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों को विशेष रूप से हमारे सभी तकनीकी सहायकों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने समय प्रबंधन में हमारी मदद की है और प्रतियोगिता के सुचारू आयोजन के लिए गुणवत्तापूर्ण ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की है। आप सभी को धन्यवाद। अंत में मैं अपने सभी विद्यार्थियों को उनकी आकर्षक और हृदयस्पर्शी हिंदी कविताओं के लिए अपनी गहरी सराहना व्यक्त करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जीत और हार किसी भी प्रतियोगिता का हिस्सा है। जीतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपकी भागीदारी मायने रखती है। आप सभी बहुत प्रतिभाशाली हैं। तब तक मत रुकिए जब तक आप जीत नहीं जाते। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। मुझे ध्यान से सुनने के लिए एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद।